Good morning, students. Myself BIPIN Reshamwala, and today I'm going to start Science, chapter number 15, Our Environment. Till now, we have done 6 chapters in SS, chapter 1 and 2, chapter 8 and 9, and chapter 15 and 16. So now I'm going to do Science, Biology chapters. It is very inconvenient to do physics or chemistry on this type of platform. You need to be more careful when I read that things. So I'm going to start science today. Later, I will try to manage physics and chemistry also online. But till now, biology and in SS, many chapters I will be taking. So let's see. Chapter number 15, our environment. This is a very basic chapter, students. बहुत ही easy going है. आप लोग एक बार read करेंगे तो भी आपको आ जाएगा. So let's see. We have heard the word environment after being used on the television, in newspaper, and by people around us. Our elder tells us that environment is not what it used to be earlier. हमेशा हमारे पेरेंट्स हमारे एल्डर्स बोलते हैं कि आजकल का जो एनवायरनमेंट है पहले जैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पॉल्यूशन वगैरह हो गया है. Others say that we should work in a healthy environment. Healthy environment यानी कि साफ सुथरा environment, hygienic environment. And global summits यानी कि meetings involving the developed and developing countries are regularly held to discuss environmental issues. ग्लोबल मीटिंग्स होती ही रहती है ग्लोबल वार्मिंग के लिए, जो हीट ज्यादा बढ़ रही है, जो हर साल 1 डिग्री टेम्परेचर एवरेजली बढ़ रहा है, तो इसके ऊपर डिस्कशन करने के लिए हर साल कुछ ना कुछ मीटिंग्स होती रहती है. In this chapter, we shall be studying how various factors of environment interact with each other and how the impact of environment. In class 9th, we have saw that different materials are cycled in the environment in a separate biogeochemical cycle. Last year देखा ही था कई तरह की cycles थी, जैसे कि essential nutrient cycles like nitrogen, carbon, oxygen and water cycle are changed from one form to another. We shall now study how human activities affect these cycles. तो नेचर अपना काम बहुत ही अच्छे से कर रहा है. नेचर की तरफ से कोई भी कमी नहीं रह जाती हमारे बीच में, लेकिन ह्यूमंस अपने खुद के डेवलपमेंट के लिए नेचर को अफेक्ट जरूर से करता है, एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब जरूर से करता है. हम हमारे कंफर्ट के लिए बहुत सारी चीजें करते हैं, बट जिसका असर हमारे खुद की जनरेशन पे एंड फ्यूचर जनरेशन पे डेफिनेटली हमको देखने मिलेगा. So let's see some topics now. What will happen when we add our waste to the environment? Add our waste. Our waste का मतलब हमारे घर में दिन भर में कई सारा कूड़ा कचरा निकलता है, कई तरह का वेस्ट अलॉट होता है. तो let's see. In our daily activity, we generate a lot of material that are thrown away. What are some of these waste material? बहुत सारी चीजें हम फेंक देते हैं. What happens after we throw them away? Let us perform an activity. अब बच्चों यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी होंगी जो थोड़ा आपको इंटरनेट पे भी सर्च करना पड़ेगा. जो जो यहाँ पॉसिबल है मैं आपको बता दूंगा. Collect waste material from your homes. This could include the waste material that we generate in a day. एक दिन में बहुत कुछ निकलता है. Like kitchen waste, that is spoiled food, जो सड़ गया हुआ खाना हो, vegetable peels होते हैं, used tea leaves होते हैं. Then milk packets, empty cartons जो डब्बे होते हैं वगैरह, waste paper, empty medicine bottles, stripes and bubble packs, old and torn clothes and broken footwears. तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमारे घर पे निकलती रहती है, बट इन सब में कुछ ना कुछ डिफरेंसेस हैं. तो लेट्स सी. बरी यानी उसको गाड़ दो. बरी दिस मटेरियल इन द पिट, खड्डे में, इन द स्कूल गार्डन, और इफ देयर इज नो स्पेस अवेलेबल यू कैन कलेक्ट द मटेरियल इन द ओल्ड बकेट, फ्लावर पॉट एंड कवर विथ एटलीस्ट 15 सेंटीमीटर ऑफ द सॉइल. सॉइल में, मिट्टी में उसको कम से कम 15 सेंटीमीटर तक इन सारे मटेरियल्स को गाड़ देना, जो भी चाहो मटेरियल. कीप दिस मटेरियल मॉइस्ट, उसको रोज के रोज पानी देते रहो, यानी उसको मॉइस्चर चाहिए, वो उगेगा नहीं उसमें से कुछ, और उसको मॉइस्चर पानी होना चाहिए अंदर थोड़ा बहुत. ऑब्जर्व दिस आफ्टर 15 डेज ऑफ इंटरवल, 15 दिन के बाद देखो. व्हाट आर द मटेरियल दैट रिमेन अनचेंज्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. 15 दिन के बाद भी ऐसे कौन कौन से मटेरियल थे जिसमें कोई चेंजेस दिखाई नहीं, जो कुछ हुआ ही नहीं उनको. तो अंडरलाइन थिंग्स यानी ऊपर देखो यहाँ पे बच्चों, जो जो चीजें मैंने अंडरलाइन की है, जैसे कि मिल्क पैकेट जो कि प्लास्टिक के होते हैं, एम्प्टी कार्टून्स जो होते हैं, प्लास्टिक के बड़े बड़े कार्टून हो सकते हैं,
या तो इसमें लकड़े के हो सकते हैं, या तो पुट्ठा जिसको बोलते हैं वो हो सकते हैं। तो मिल्क पैकेट जनरली वो प्लास्टिक के होते हैं। एम्प्टी मेडिसिन बॉटल, स्ट्राइप्स एंड बबल पैक्स देखा ही होगा। स्ट्राइप्स जो होती है जनरली एल्यूमिनियम फॉइल की होती है वो। बॉटल्स ग्लास की होती है। बबल पैक्स जो होते हैं प्लास्टिक के होते हैं। एंड ब्रोकन फुटवेयर जो कि रेक्सिन, प्लास्टिक, इन सब का हो सकता है। तो जितनी भी अंडरलाइन चीजें मैंने की है बच्चों, ये बहुत दिनों तक इनको कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा। इनफैक्ट सालों साल तक इसको गाड़ के रखेंगे ना तो भी ये वैसे का वैसा ही रहेगा, ये कभी भी डिकम्पोज होगा नहीं। Of these materials which are changed, which one changes the fastest? कौन कौन से चेंज हुए? तो बच्चों जितने भी यहाँ अनटिक्ड हैं, जैसे कि किचन वेस्ट, स्पॉइल फूड, वेजिटेबल पील्स, यूज स्टील यूज, एम्प्टी कार्टून्स हैं, वेस्ट पेपर है, ओल्ड एंड टॉर्न क्लोथ्स, फटे हुए पुराने कपड़े हैं, ये सब चीजें जल्दी से चेंज हो जाएगी। और इनमें से सबसे फास्ट कौन सी चीजें चेंज होगी? तो किचन वेस्ट। तो वेजिटेबल पील्स हो गए, यूज स्टील यूज हो गए, स्पॉइल फूड हो गया, तो वो जल्दी से जल्दी चेंज हो जाएंगे। ऑलरेडी ये हमने यूज कर लिया है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है और ये ऑर्गेनिक मैटर है। तो ऑर्गेनिक मैटर डीकम्पोजर्स जो होते हैं, जो जमीन के अंदर, जो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरियाज वगैरह होते हैं, तो इजीली ऐसी चीजों को डीकम्पोज कर लेते हैं। जबकि प्लास्टिक की चीजें जो होती है उनको डीकम्पोज नहीं होता है। तो द थिंग्स which can be easily decomposed by the organic material is called biodegradable material। जो ऑर्गेनिक चीजें आराम से डीकम्पोज हो जाती है, तो ऐसे कंपोनेंट्स को बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। वी हैव सीन द चैप्टर ऑफ लाइफ प्रोसेस। एक्चुअली हमने देखा नहीं अभी तक लाइफ प्रोसेस चैप्टर, वो मैंने तुम लोगों को खाली पीडीएफ भेजा था और वो टॉप स्कोरर ऐप से बोला था। That the food we eat is digested in by the enzymes in the body। हम जो भी खाना खाते हैं वो डाइजेस्ट कैसे होता है? तो हमारी बॉडी में एंजाइम्स होते हैं। ये एंजाइम्स को बायोकेमिकल सब्सटेंस बोलते हैं। हमारी बॉडी में खाना डाइजेस्ट करवाने में मदद करते हैं। Have you ever wondered why the same enzyme does not break everything we eat? हम कुछ भी खा लेंगे तो वो डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। से फॉर एग्जाम्पल अगर हम प्लास्टिक खा लेंगे तो प्लास्टिक डाइजेस्ट नहीं हो जाने वाला है। एंजाइम्स आर द स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। हर एक एंजाइम अपने एक्शन में स्पेसिफिक होता है। स्पेसिफिक एंजाइम्स आर नीडेड फॉर द ब्रेकडाउन ऑफ द पर्टिकुलर सब्सटेंस। हमारी बॉडी में हम बहुत सारी चीजें खाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट हो गया, प्रोटीन्स हो गया, विटामिन्स हो गया, फैट्स हो गया। तो हम जो भी कुछ खाना खाते हैं पहले तो वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट होता है, उसके बाद धीरे धीरे जाके वो एंजाइम्स उसके ऊपर एक्ट करते हैं और भी स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट करता है, यानी सिंपल कन्वर्जन होता है उसका। That is why we will not get any energy if we try to eat coal। कोल जो होता है, कोलसा बच्चों जो होता है, आपको पता ही होगा कि कोल कैसे ऑब्टेन होता है। मिलियंस ऑफ इयर्स अगो जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल जो जमीन के अंदर गड़ गए थे, उनका डीकम्पोजिशन हो गया था, तो उसमें से कोल बनता है। अब ऑलरेडी जो चीज डीकम्पोज हो चुकी है यानी कोल, उसको वापस से अगर हम खाएंगे तो उसमें से कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली है। तो कोल को खा के कोई एनर्जी नहीं मिलने वाली है। ऐसा हम लोग नहीं कर सकते कि कोल को खा लेंगे और हमको एनर्जी मिल जाएगी। हम जो कुछ भी खाते हैं उससे हमको एनर्जी मिलती है, बट दैट सब्सटेंस ओनली व्हाट वी ईट जो एनर्जी दे सके, यानी जो डीकम्पोज नहीं हुई है। कोल इज ऑलरेडी डीकम्पोज्ड। Because of this, many human-made material like plastic will not be broken down by the action of bacteria or other saprophytes। Saprophytes बच्चों वो decomposers होते हैं जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे फीड करते हैं। तो कई तरह के बैक्टीरिया, फंगी, पैरासाइट्स जो होते हैं अलग अलग तरह के, तो ये डीकम्पोजिशन में मदद करते हैं। तो सेप्रोफाइट्स भी है जो सड़ी गली जो लाश होती है उसको सड़ाते हैं और भी उसको डीकम्पोज करते हैं। These materials will be acted upon by the physical process like heat and pressure, but under the ambient condition, ambient यानी कि normal condition found in the environment, they persist for a long time। तो ऐसे मटेरियल नॉर्मली फिजिकल प्रोसेस यानी हीट और प्रेशर से कन्वर्ट हो जाते हैं, बट जो नॉर्मल कंडीशन अगर होती है, जैसे कि हमारे एटमॉस्फेयर की जो कंडीशन है, अगर कोई चीज हम जमीन में अभी गाड़ देंगे तो वहां का टेम्परेचर प्रेशर इतना ज्यादा नहीं बढ़ जाएगा तुरंत के तुरंत, जिसकी वजह से वो चीजें तुरंत ही डिकम्पोज हो जाएगी। उसको कई टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसलिए ऐसी चीजें एनवायरनमेंट में बहुत टाइम तक टिकी रहती है, और प्लास्टिक जैसी चीजें बरसों बरस सदियों तक ऐसी की ऐसी ही रहेगी। तो डेफिनेशन बच्चों, सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। ऐसे सब्सटेंस
जो बायोलॉजिकल प्रोसेस, बायोलॉजिकल यानी डीकंपोजर्स जिसको डीकंपोज करते हैं, तो ऐसी प्रोसेस को, ऐसे सब्सटेंस को बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। हाउ मेनी ऑफ द सब्सटेंस यू बरीड वर बायोडिग्रेडेबल? तो हमने देखा अभी प्लास्टिक के अलावा जितनी भी चीजें थी, वेजिटेबल थे, स्पॉइल्ड फूड था, देन एम्प्टी कार्टून्स था, वेस्ट था, पेपर था, ये सारी चीजें जो है वो बायोडिग्रेडेबल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन इन दिस मैनर, यानी बायोलॉजिकल प्रोसेस से ऐसी चीजें तोड़ी नहीं जा सकती, डिकम्पोज नहीं की जा सकती, such substances are called non biodegradable substance. These substances may be inert, inert हो सकते हैं, inert का मतलब non reactive हो सकते हैं, and simply persist in the environment for a long time and may harm the various members of the ecosystem. हमने देखा ही होगा बच्चों, प्लास्टिक हर जगह है और हर जगह प्लास्टिक जो है पड़ा ही रहता है। अगर उसको ट्रीट नहीं किया गया, उसको रिसाइकल नहीं किया गया, तो एटमॉस्फेयर में पड़ा ही रहेगा वो। एक्टिविटी 15.2 सेल्फी करनी है, खुद ही करनी है। यूज द लाइब्रेरी और इंटरनेट टू फाइंड आउट मोर अबाउट बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस। हाउ लॉन्ग कैन वेरियस नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस एक्सपेक्टेड टू लास्ट इन द एनवायरमेंट, यानी कितने टाइम तक ऐसे सब्सटेंस नॉन बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट में रहते हैं। तो बच्चों प्लास्टिक जैसा होगा तो कई सालों तक रह सकते हैं, उसको कुछ भी नहीं होगा, वैसा का वैसा पड़ा रहेगा। और केमिकल्स वगैरह जैसे होते हैं, फर्टिलाइजर्स होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, इनको भी कुछ नहीं होगा, वैसे के वैसे ही जमीन में पड़े रहेंगे। These days, new substances like plastic, which are called biodegradable plastics, are available. Find out more about such material and whether they do or do not harm the environment. ये एनवायरमेंट को हार्म नहीं करते बच्चों। आजकल की अगर आपने प्लास्टिक की थैलियां देखी होगी तो वो रिसाइकल प्लास्टिक से ही नहीं बनता है, उसमें ऐसे मटेरियल होते हैं, अलग कार्बन पार्टिकल्स के होते हैं जो इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं। तो दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक्स आर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक, इसको बायोडिग्रेड कर सकते हैं जमीन में या उसका डिकम्पोजिशन पॉसिबल है। Why are some substances biodegradable and some are non-biodegradable? ये क्वेश्चन है, तुमको मैं क्वेश्चन आंसर भेज दूंगा, उसमें इन सारे क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाएंगे। कुछ कुछ जो डिस्कस करने लायक होंगे मैं आपको अभी बता देता हूँ। तो कोई सब्सटेंस को बायोडिग्रेडेबल और कोई सब्सटेंस को नॉन बायोडिग्रेडेबल क्यों बोलते हैं? तो ऑब्वियसली जो डिकम्पोज हो जाते हैं उनको बायोडिग्रेडेबल बोलेंगे, और जो डिकम्पोजर्स यानी बैक्टीरिया वगैरह से डिकम्पोज नहीं होंगे उनको नॉन बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं। Give any two ways in which the biodegradable substance would affect the environment. तो बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस अफेक्ट कैसे करते हैं एनवायरनमेंट को? तो बच्चों अगर आपने देखा होगा कि जो खाना वगैरह अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो खाना अपने आप एनवायरनमेंट में सड़ता रहता है। अगर उसको ऐसे ही तुम फेंक दोगे, कचरे के डब्बे में से बहुत ही गंदी सी स्मेल आती है, फाउल स्मेल उसको बोलते हैं। और वहां पे अगर आपने देखा होगा तो ब्रीडिंग साइट्स फॉर इंसेक्ट, वहां मक्खी वगैरह ये सब भी बहुत आती है, मच्छर वगैरह भी ज्यादा हो जाते हैं। तो ये दो इफेक्ट यहाँ पे हमको दिख रहे हैं जो क्लियर कट सभी ने देखा होगा। ऐसी चीज कि खाने पीने की चीजें ऐसे ही अगर बाहर पड़ी रहेगी या इस तरह से डीकम्पोज होती रहेगी कचरे के डब्बे या तो गार्बेज डंप्स में, तो आपको इस तरह की स्मेल और मच्छर वगैरह का खतरा रहता है। Give any two ways in which non-biodegradable substance would affect the environment. तो नॉन बायोडिग्रेडेबल एनवायरमेंट में रह के क्या नुकसान करते हैं? तो दे रिमेन इन द एनवायरमेंट एंड क्रिएट्स पॉल्यूशन एंड किल्स एनिमल। कई तरह के ऑर्गेनिजम्स को ये मार भी देता है, जैसे एक्वेटिक एनिमल्स जो होते हैं, प्लास्टिक या केमिकल्स जाके और फैक्ट्रीज से जो केमिकल रिलीज होते हैं पानी में, तो उसमें से भी काफी सारे एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स को नुकसान पहुंचता है। पेस्टिसाइड्स जो हम क्रॉप्स पे छिड़कते हैं, डिटर्जेंट जो घर में हम यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, पॉलीथीन यानी प्लास्टिक मटेरियल्स, हर एक तरह का प्लास्टिक मटेरियल कॉजेज वाटर एज वेल एज सॉइल पॉल्यूशन। ecosystem, what are its component? All organisms such as plants and animal, microorganism and human being as well as physical surrounding, हमारा physical surrounding interact with each other and maintain the balance in the nature. ये सारी चीजें लिविंग है, प्लांट, एनिमल, माइक्रोब्स, ह्यूमन, हम सब लिविंग है। फिजिकल एनवायरनमेंट यानी नॉन लिविंग, एबायोटिक कंपोनेंट जैसे टेम्परेचर हो गया, प्रेशर हो गया, हीट हो गया, विंड हो गया, ये सब। All the interacting organism in area together with a non-living constitute the environment forms the ecosystem. So when biotic and abiotic component interact with each other, they form the ecosystem. So definition बच्चों, an ecosystem consists of biotic यानी living component comprising of living component and abiotic component comprising of physical features like
टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सॉइल एंड मिनरल। तो बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट टुगेदर फॉर्म्स अ इकोसिस्टम। तो इकोसिस्टम बच्चों दो तरह की होती है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो लेट्स सी सम एग्जांपल्स ओवर हियर। फॉर एग्जांपल इफ यू विजिट अ गार्डन, गार्डन नेचुरली ऑब्टेन नहीं होता है, गार्डन को इंसान बनाता है। You would find different plants such as grasses, trees, flower-bearing plant like rose, jasmine, sunflower, and animals like frog, insect, and bird. अपने आप ये सब insects, birds आ जाते हैं garden के अंदर. All these living organisms interact with each other and their growth, reproduction, and other activities are affected by abiotic component of the ecosystem. Temperature, wind इन सबसे affect होता है. So garden is an ecosystem. Garden एक तरह का ecosystem हो गया. Other type of ecosystems are forests, ponds and lakes. बच्चों फॉरेस्ट, पॉन्ड्स और लेक्स नेचुरल इकोसिस्टम हो गया, ये हम नहीं बनाते, ये नेचुरली बनता है। While gardens and crop fields यानी एग्रीकल्चर फील्ड्स आर मैन मेड और ह्यूमन इकोसिस्टम। यहाँ पे एक एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं, एक्वेरियम। एक्टिविटी 15.3 एक्वेरियम बनाना है हमको। तो एक्वेरियम के लिए कौन कौन सी चीजें लगती है? तो फिश लगती है, उसको फ्री स्पेस चाहिए स्विमिंग के लिए, तो बड़ा सा जार चाहिए, वाटर चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए और फूड चाहिए। we can provide oxygen through oxygen pump, aerator जिसको बोलते हैं। बच्चों एक बात समझ लेना कि जो एटमॉस्फेयर का जो पॉन्ड, लेक वगैरह होता है, तो वहां पे नेचुरल एनवायरनमेंट के थ्रू पानी में से ऑक्सीजन लिया जाता है, तो वो नेचुरली अकर होता है। बट जो पानी हम लोग यूज करेंगे एक्वेरियम के अंदर, उसमें ऑक्सीजन उस तरह का नहीं बनता है, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को अलग अलग तरह का ऑक्सीजन चाहिए होता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन उस तरह से नहीं बनता, तो हमको बाहर से ऑक्सीजन पंप यानी एरेटर लगाना पड़ता है। फिश फूड जो मार्केट में इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो खाना भी चाहिए मछलियों के लिए। अदरवाइज पॉन्ड वगैरह में तो मछली अपना खाना खुद ढूंढ लेती है, यहाँ पे ऐसा नहीं होने वाला। If we add few aquatic plants and animals, it can become a self-sustaining system. अगर थोड़े बहुत aquatic plants और animals अगर डाल दे, तो खाने पीने की प्रॉब्लम कुछ हद तक सॉल्व हो जाएगी। Can you think how this happen? An aquarium is an example of human-made ecosystem. It is a man-made ecosystem. Can we leave the aquarium as such after we set up? तो no, a big no. एक्वेरियम को ऐसे ही एक बार बनाने के बाद हम लोग उसको लाइफ टाइम तक ऐसे ही नहीं छोड़ सकते, वो एक्वेरियम पूरा खराब हो जाएगा। हमको कुछ टाइम, 2 हफ्ते 2 हफ्ते में एक आध बार वो पूरे जार को साफ करना पड़ता है। अगर उसको साफ नहीं करेंगे तो उसमें पूरे कीड़े पड़ जाएंगे, या तो बोल सकते हैं कि वो पूरा खराब हो जाएगा। Why does if we have to clean once in a while? Do we have to clean ponds और lakes in such a manner? क्या ponds और lake को इस तरह से हमको clean करना पड़ता है? क्या कोई pond और lake को clean करने जाता है? तो no, वो अपने आप clean होता है। क्यों? Because it contains decomposers. Suppose कि मछलियां मर गई, तो मछलियां जो पॉन्ड लेक में मर जाती है, तो वो अपने आप पानी के अंदर डिकम्पोज हो जाती है, क्योंकि पानी के अंदर सॉइल वगैरह होता है, वहां डिकम्पोजर्स होते हैं, बैक्टीरियाज होते हैं, वो उसको डिकम्पोज कर लेंगे। बट एक्वेरियम में ऐसी कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों। We have seen in the earlier classes that organisms can be grouped as producers, consumers and decomposers according to manner in which they obtain their substance यानी खाना from the environment. Let us recall what we have learned through self-sustaining ecosystem created by us above, जो aquarium में हमने देखा, तो उसके लिए which organism can make organic compound like sugar? Sugar का फॉर्मूला है बच्चों C12H22O11। Sugar and glucose are two different things. Sugar decompose होके ग्लूकोज बनता है, जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, जबकि शुगर का फॉर्मूला है C12H22O11। एंड स्टार्च, तो ऑर्गेनिज्म जब डिकम्पोज होता है तो शुगर एंड स्टार्च बनता है फ्रॉम इनऑर्गेनिक सब्सटेंस यूजिंग रेडिएंट एनर्जी। रेडिएंट यानी सोलर एनर्जी बच्चों, ऑफ द सन इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल। तो वी हैव सीन कि ग्रीन प्लांट्स जो होते हैं एंड कोई कोई ब्लू ग्रीन एल्गे जो होते हैं विच कैन प्रोड्यूस फूड बाय फोटोसिंथेसिस प्रोसेस comes under this category and are called producers. तो ऐसे organisms को producer बोलते हैं। Organism depend on producer directly or indirectly for their sustenance. These organisms which consume food produce either directly or from the producer or indirectly by feeding on other consumer are called consumers. तो जो अपना खाना खुद बनाते हैं उनको बोलते हैं प्रोड्यूसर, जो अपना खाना दूसरों से डिराइव करते हैं उनको बोलते हैं कंज्यूमर।
कंज्यूमर्स आर क्लास वेरियसली एज हर्बीवरस, ये फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल से सेकंड ट्रॉपिक लेवल का हो गया। ये कार्निवरस, ओमनीवरस, ओमनीवरस यानी कि जो हर्बीवरस और कार्निवरस यानी कि ग्रासेस, प्लांट्स वगैरह और एनिमल दोनों पे फीड करते हो। एंड पैरासाइट्स, और जो पैरासाइट्स ऐसी कैटेगरी है जो किसी होस्ट में रहते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म में रहते हैं, या तो बॉडी के ऊपर रहते हैं या तो बॉडी के अंदर रहते हैं, और उसी ऑर्गेनिज्म में से खाना डिराइव करते हैं और ऑर्गेनिज्म को हार्म भी करते हैं। तो जैसे कि अपने सर में जो बचपन में देखा होगा, तो सरों में जो जू होती है, लाइस जिसको बोलते हैं, तो वो हमारे सर का खून पीती है, उसको तो खाना मिल गया बट हमको तो डैमेज कर रही है ना वो। तो ऐसे ही हमारे इंटेस्टाइन में कई तरह के वॉर्म्स होते हैं, कीड़े होते हैं, वॉर्म्स होते हैं। तो ये वॉर्म्स जो होते हैं हम में से खाना डिराइव करते हैं और फिर हमको परेशान भी करते हैं, वॉमिटिंग वगैरह, डायरिया, ये सब भी होता है हमको। तो ऐसे पैरासाइट्स हमारी बॉडी पे भी होते हैं, अंदर भी होते हैं, ऐसे जानवरों में भी होता है। कैन यू गिव एग्जांपल ऑफ ऑल दिस कैटेगरी एज अ कंज्यूमर्स? तो डेफिनेटली हर्बीवर्स की बात करें तो डियर हो गया, ए सिंपल सा एग्जांपल। बहुत सारे हर्बीवर्स है, काऊ हो गया, बफेलो हो गया, गोट हो गया। कार्निवोरस की बात करें तो फर्स्ट लेवल ट्रॉपिक, सेकंड लेवल ट्रॉपिक बहुत सारे होते हैं। टाइगर हो गया, लायन हो गया, लेपर्ड हो गया, ये सब। ओमनीवोरस में हम खुद आ जाते हैं। इमेजिन द सिचुएशन वेयर यू डू नॉट क्लीन द एक्वेरियम। अगर हम एक्वेरियम को क्लीन नहीं करेंगे, and some fish and plants have died, कुछ मर गए। Have you ever thought what happened when the organism dies? The microorganism comprising bacteria and fungi break down the dead remains and waste product of the organism. These microorganisms are called decomposers. तो ये तीसरी कैटेगरी है। हमने पहला देखा प्रोड्यूसर, दूसरा देखा कंज्यूमर, और तीसरा है ये डीकम्पोजर। As they break down the complex organic substance into simple organic substance that go into the soil and can use up once more by the plants. तो नॉर्मली जो इकोसिस्टम होता है, जैसे फॉरेस्ट इकोसिस्टम हो गया, लैंड इकोसिस्टम हो गया, देन पॉन्ड इकोसिस्टम हो गया, तो इन सब में तो डीकम्पोजर्स जो होते हैं, ये सारी साइकिल्स में देखा ही होगा आपने, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, इन सब में देखा ही होगा लास्ट ईयर कि किस तरह से ये सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं डीकम्पोज होते हैं बैक्टीरिया, फंगी से, और वापस से सॉइल में ही जाते हैं। फिर यही सॉइल जो होता है मिनरल्स के फॉर्म में पूरा कंज्यूम करता है और सेम क्रॉप्स वापस से बनाता है। What will happen to the garbage and dead animals and plants in their absence? कि सोचो अगर ये डीकम्पोजर होते ही नहीं तो क्या ये गार्बेज और जो मरे हुए प्लांट एनिमल जो होते हैं तो उनको खाता कौन? वो तो ऐसे के ऐसे ही एनवायरमेंट में रहते हैं। फिर पूरा एनवायरमेंट पॉल्यूशन हो जाता है, एयर पॉल्यूशन हो जाता। What will the natural replenishment of the soil take place? Sorry, will the natural replenishment of the soil take place if the decomposers are not there? तो definitely no. Decomposer का बहुत ही बड़ा रोल होता है। अगर decomposer नहीं होंगे तो ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल ऑर्गेनिक मैटर में कन्वर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। दैट मीन्स कि बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के बीच में जो लिंक है वो टूट जाएगा और कुछ भी साइकिल कभी भी चलेगा नहीं, पूरा का पूरा इकोसिस्टम ठप पड़ जाएगा और खत्म हो जाएगा। एक्टिविटी 15.4, यहाँ पे हमको कुछ इकोसिस्टम के बारे में देखना है। While creating the aquarium, did you take care not to put an aquatic animal which would eat each other? हम लोग जब एक्वेरियम रखते हैं ना, तो ये भी हमको ध्यान रखना पड़ता है कि ऐसी मछलियां एक साथ ना रख दें कि एक दूसरे को खा जाए वो। What would happen otherwise? तो खा जाएंगे। Make a group and discuss how the above groups of the organism are dependent on each other. Write the aquatic organism in order, who eats whom, and forms a food chain at least 3 step. Aquatic organism में तो ब्लू ग्रीन एल्गे की बात कर लेते हैं। इनको खाएंगे छोटी मोटी फिश और उनको खाएगी बड़ी फिश। ये कुछ एग्जाम्पल है छोटा सा। Would you consider any group of organism to be of primary importance? Why or why not? तो प्राइमरी इंपॉर्टेंस डेफिनेटली जो ज्यादा जरूरी है तो उनको हम लोग एक ग्रुप में रख सकते हैं। जैसे कि ब्लू ग्रीन एल्गे है, ग्रीन प्लांट्स है, ये एक ग्रुप में। अगर ये प्राइमरी इंपॉर्टेंस यानी कि प्राइमरी ग्रुप में नहीं होंगे तो डेफिनेटली आगे की साइकिल चलेगी नहीं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आज इतना ही हम लोग देख रहे हैं, बाकी का नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।